Hello everyone, this is Jyoti and welcome to Nirbhar Academy. So let's proceed with your lecture. आज हम complete करेंगे reference to the context of the poem Father to Son, which is written by Elizabeth Jennings, and this one is the poem number 5 of 11th class book Hornbill. Poetry section इसमें हम cover कर रहे हैं. I have already shared 2 videos with you. I hope आपको कोई भी doubt नहीं रहा होगा. And if you are having any queries, तो after seeing these reference to the context, आपका जितने भी doubts होंगे वो और भी अच्छे से clear हो जाएंगे. So one by one we will cover all the stanzas. So stanza number 1 is, I don't understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up our relationship from how he was when small, yet have I killed. So we will have the question which is based on this stanza. So question number 1 is, who doesn't understand this child? इस बच्चे को कौन नहीं समझ पाया है? So the answer will be, the father doesn't understand this child. So simple सा आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. Second question is, where have both of them lived for years? So answer will be, both of them have lived under the same roof, for years. कितने सालों से वो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं दोनों. बोथ ऑफ देम कौन है यहाँ पे? फादर एंड सन. व्हाट डज ही नो अबाउट हिज सन? वो अपने सन के बारे में, अपने बेटे के बारे में, ही कौन है यहाँ पे? फादर. तो फादर अपने बेटे के बारे में क्या जानते हैं? यस, तो आंसर क्या आएगा? ही नोज nothing about his son. वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. He is completely stranger to him. फादर के लिए जो बेटा है वो बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रेंजर है. Our next question is, what does the father want? जो उनके पापा हैं, बच्चे के फादर जो हैं वो क्या चाहते हैं? The father wants to build a workable relationship with his son. वो एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं जो काम करे, जो इफेक्टिव हो, जिसको बार बार तोड़ा ना जा सके. एक स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप है वो उस बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ वो बनाना चाहते हैं. नाउ गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बिल्ड. बिल्ड का हमें एंटोनिम क्या होता है? यस, आपका अपोजिट वर्ड. तो बिल्ड मीन्स क्या होता है? बनाना, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय. Now last question of this stanza is, find an adjective from the above extract. अब जो ये मेरा ऊपर फर्स्ट stanza है उसमें आप देखिए, yes I can show you the stanza again. So इसमें देखिए हमारा जो adjective है वो क्या है? yes, same house. house क्या है? noun है, और जो same है वो एक adjective का काम कर रहा है. ठीक है. सो इसमें हाउस की जो क्वालिटी है वो सेम है, एडजेक्टिव है. तो इस स्टेंजा के अंदर हमारा जो एडजेक्टिव आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सेम. सो द आंसर विल बी, एडजेक्टिव कौन सा है हमारे इस एक्सट्रैक्ट में? यस, सेम. सो द आंसर विल बी सेम. सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चंस आरटीसी ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा. नेक्स्ट स्टेंजा इज, the seed I spent or sown it where, the land is his and none of mine. We speak like strangers,
there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves cannot share. So यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, what does the seed refer to? अब इसमें देखिए सीड जो है, इस मीन्स यहाँ पर जो सीड है वो किसको रेफर कर रहा है. So the answer will be the seed refers to the speaker's son. The son भी आप लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं the seed refers to the speaker's son. Why do father and son speak like strangers? फादर और जो सन है वो अजनबियों की तरह क्यों बात करते हैं? So the answer will be they speak like strangers because speak like strangers because both of them have some misunderstanding between them. उनके बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से उनके जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए हैं और वो सुलझ नहीं पा रहे हैं. हर रिश्ता तभी खराब होता है जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है. सो द आंसर बिकॉज दे आर हैविंग सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द फादर से द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन? इसमें जो फादर है वो ऐसा क्यों कहते हैं? द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. सो द फादर सेज सो बिकॉज because he wants him to be the part of the family and live with him. वो चाहते हैं वो फैमिली का हिस्सा बने रहे और वो उनके साथ रहें. बट द सन wants to make his own world. वो अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं जो बेटा है और इसीलिए जो फादर हैं वो ऐसा कहते हैं. सो द फादर सेज सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड हेट्स. सो स्ट्रेंजर्स का क्या हो जाएगा? एक्विटेंसेस. और हेट्स का क्या हो जाएगा? लव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन? इस लाइन का मीनिंग क्या है जिसमें जो फादर है वो ये कहते हैं द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन? सो द आंसर विल बी इट मीन्स द सन resembles the father in physical appearance. वो देखने में बिल्कुल कैसे अपने पिता के जैसे हैं और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि ये जो बच्चा है इसको मैंने बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया था. तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स द सन रिजेंबल द फादर इन फिजिकल अपीयरेंस. नेम द पोम एंड द पोइट. सो पोम कौन सी है आपकी? यस, पोम इज फादर टू सन एंड पोइट इज एलिजाबेथ जेनिंग्स. Our next stanza is silence surround us. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Now question is explain silence surround us. जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसका मीनिंग क्या है? Yes,
the silence mentioned here is that the father and the son have developed a lot of misunderstanding over the years. बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में आ गई है. एंड there is nothing for them to talk about and share. कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि वो आपस में बात करें या एक दूसरे से कुछ शेयर करें. It also means there is no dialogue between both of them. उन दोनों के बीच में कोई बातें नहीं होती हैं. Next question is, what does the father wish? The father wishes his prodigal, extravagant, his prodigal son would come back to his father's house. वो ये चाहते हैं कि वो वापस लौट करके अपने फादर के घर में आ जाए. अज रेफर्स टू, अज किसको बताते हैं? जैसे यहाँ पे ना साइलेंस सराउंड्स अज, तो अज किसको रेफर कर रहा है? यस, द फादर एंड द सन. फादर और सन को रेफर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज ही वांट हिज सन टू मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड? वो चाहते हैं क्या कि जो फादर हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो बेटा है वो अपनी एक अलग दुनिया बसा ले. सो द आंसर विल बी नो. द फादर डजंट वांट हिज सन may lead an independent life of his own. वो नहीं चाहते हैं कि जो बेटा है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो बनाए. और क्या चाहते हैं वो? he wants him to live under the same roof, कि हम दोनों साथ मिलकर के एक ही छत के नीचे रहें. एंड शेयर कॉमन लाइफ, और एक कॉमन लाइफ जो है हम दोनों शेयर करें. और इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो अपनी दुनिया अलग बसाए. What can shape from sorrow? What can shape from sorrow means कि जो सोरो है, सोरो में से, उस दुख में से क्या पता एक नया रिश्ता जो है वो जन्म ले ले. तो न्यू लव कैन टेक बर्थ आउट ऑफ सोरो, कि उस दुख में से एक नया रिश्ता हमारा जन्म ले, प्यार जन्म ले. द फादर इज इन a mood to forget and forgive
sorrows and bitterness। वो पुरानी जितनी भी कड़वाहट है, जितने भी दुख है, उनको भूल जाने के बिल्कुल मूड में है और नहीं चाहते हैं कि ये जो कड़वाहट है वो आगे कंटिन्यू हो, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जो ये हमने सहा है अब वो ख़त्म हो जाना चाहिए और अब हमारे बीच में एक नया रिश्ता जो है वो प्यार के साथ शुरू होना चाहिए। Our next question is what does the word prodigal mean? Yes, extravagant, खर्चीला, फिजूल खर्च करने वाला, extravagant। Now we are having the next question, question number 7. Where has the son gone? क्योंकि जब उसमें बोल रहा है कि मेरा बेटा वापस आ जाए, तो कुछ बच्चों को उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि लड़का जो है वो क्या कहीं चला गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सो वेयर हैज द सन गॉन? बेटा कहीं गया है? द सन हैजंट गॉन, कहीं नहीं गया है वो। द सन हैजंट गॉन एनीवेयर, वो कहीं नहीं गया है। There is no dialogue between them, क्योंकि उनके बीच में कोई बात नहीं होती है और इसीलिए वो उसको वापस आने के लिए कहते हैं। तो सिर्फ ये यहाँ पे किसको रेफर करता है कि उनके बीच में आपस में कोई डायलॉग्स नहीं है, कोई बात नहीं वो करते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो उनके पास आ जाए। तो आंसर क्या होगा? द सन हैजंट गॉन एनीवेयर, वो कहीं नहीं गए हैं। Our next answer is father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. So question number 1 is बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। What does the empty hand signify? जो empty hand है वो किसको signify करता है? Yes, empty hand signifies that the failure of both the father and the son to understand each other। दोनों के हाथ खाली हैं, एक दूसरे को वो नहीं समझ पाए हैं। सो एम्प्टी हैंड इसको सिग्निफाई करता है। वेयर मस्ट दे लिव टुगेदर? सो द आंसर विल बी both of them must live on the same globe, on the same globe or on the same land। एक जगह, एक ही घर में जो है वो दोनों को रहना चाहिए, तभी उनकी एक दूसरे के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो खत्म होगी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स द फादर एंग्री? जो फादर है उनको गुस्सा क्यों आता? द ग्रीफ ऑफ द ग्रीव्ड फादर टर्न्स इनटू एंगर। क्योंकि जो फादर है वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सा है ग्रीव्ड फादर है, जो दुखी फादर है उनका जो दुख है वो किस में बदल जाता है? वो गुस्से में बदल जाता है। तो इसी वजह से जो फादर हैं वो नाराज हो जाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू दे ट्राई टू फिल अप द गैप दैट सेपरेट्स देम? जो गैप उनको दूर कर रहा है, एक दूसरे से दूर करता है, वो उसको फिल करने की कोशिश कैसे करते हैं? दे ट्राई टू fill up the gap that separates them by extending their
empty hands towards each other, एक दूसरे की तरफ अपने खाली हाथ बढ़ाते हुए वो इस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स द फॉलोइंग: वर्ल्ड, डीप सोरो एंड डिजायरिंग. सो हमारा जो स्टेंजा है उसमें से ही हमने ये तीनों जो वर्ड हैं उनके सिनोनिम्स जो हैं वो लेने हैं. सो वर्ल्ड ग्लोब आ गया, उसका सेम वर्ड उसी को ही रेफर कर रहा है, ग्लोब. डीप सोरो, ग्रीव, जो आपको स्टेंजा में ही मिल जाएगा. डिजायरिंग मीन्स लॉन्गिंग. ये तीनों वर्ड्स आपको सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स है. वर्ल्ड, ग्लोब, डीप सोरो, ग्रीव, डिजायरिंग, लॉन्गिंग. Yes, now we have completed our reference to the context of father to son. आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डीपली आप समझे होंगे पोएम को. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी एंड बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.